So, what concept we are discussing today? We are discussing fraction. It is a very important topic. It starts from grade 2 and it is very important also in competitive exams. We have a quantitative analysis in competitive exams and there we have questions of fractions. We will discuss fraction, how to solve fraction with the same denominator that we called like fractions and different denominator that is unlike fractions. We will do fractional questions having addition, subtraction, multiplication and division. And we will discuss the lowest common multiple method, that is LCM method. Okay. So, let us start. What is a fraction? Before starting, please subscribe Concept Diaries. So, what is a fraction? When we divide the whole part, look at this circle, it is a whole part, okay. When we divide this whole part into equal parts, it is the fraction. Whole part divided into small part, okay. So, in this figure, we have divided this circle into 4 equal parts, 1, 2, 3, 4. And if I ask what is the fraction of this colored part? So, out of the 4, it is the 1. One part is colored, okay. So, 1 by 4 is the fraction of this colored part, okay. If I ask you, this is the whole rectangle and I have divided it into 10 equal parts, okay. And I have colored this part, this part, this part. So, if I asked how many parts are colored, the fraction of the colored part. So, in the denominator we will put 10 and out of 10 we have the 4 colored parts. The 4 by 10 is the fraction. So, a fraction have numerator and denominator. Look here. The upper part is the numerator. जो ऊपर लिखा है उसको numerator कहते हैं. This is the divide line and this is the denominator. The lower part is the denominator. The upper part is the numerator, okay, and the lower part is the denominator. We have seen many questions like 5 by 2, 7 by 9, 100 by 50 and so on. So, these are fractions. These are not whole numbers. These are fractions. And this 7, 6, 5, these are whole numbers, okay. These are whole. In this question, I have divided the triangle into 2 equal parts. So, we can say 1 by 2. This is the half, this is the half. If I ask you, fraction of the colored part, so you can say 1 by 2. The 1 by 2 is colored and 1 by 2 is uncolored, that is half, okay. Here we are learning how to solve fractional questions, okay. Examples like 2 by 5 plus 3 by 6 plus 4 by 9 and so on. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके. We have fraction with the same denominator questions and fraction with the different denominator questions, okay. Same denominator को हम बोलते हैं like fraction. सेम डिनोमिनेटर का मतलब होता है जैसे कि कोई क्वेश्चन है 7 by 5 प्लस 2 by 5. तो देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है 5 और 5 सेम है तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन. और डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन जैसे 7 by 5 प्लस 2 by 3 है. So here the denominators are different.
देखिए डिनोमिनेटर यानी लोअर पोर्शन दैट इज 5 and 3 डिफरेंट है, सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एडिशन का क्वेश्चन लेते हैं। पहले लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का सिंपल मेथड एंड देन अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं विद द एलसीएम मेथड। वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। if we have 1 by 2 plus 3 by 2, so in this question we have same denominator, look here, the denominator is same and we have to add these two. Okay, so simple solution है, जब denominator same होते हैं common denominator लेते हैं 2 और 1 plus 3, so your answer is 4 by 2. इसको और simplify करिए 4 1 and 4 2, so your answer is 2. Second question subtraction का लेके देखते हैं 4 by 3 minus 1 by 3. So यहाँ पे डिनोमिनेटर लाइक है और यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्शन। ओके, सो डिनोमिनेटर को कॉमन रखा जाता है और न्यूमरेटर को सॉल्व किया जाता है। सो वी हैव द आंसर 3 by 3 और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज 1। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं। फोर बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर के डिजिट को ऊपर के डिजिट से मल्टीप्लाई, दैट इज न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सिंपल। 4 2s are 8, 3 3s are 9. दिस इज योर आंसर। इसमें डिनोमिनेटर को कॉमन नहीं रखना है। ओके, लेट्स सी द डिवाइड क्वेश्चन। फोर बाय 3 डिवाइड बाय 2 by 3। डिवाइड के क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, इस रूल को याद रखिएगा। जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ओके, 4 by 3 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में 2 था जो कि डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर में 3 था वो न्यूमरेटर में आ गया। साइन चेंज हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सॉल्व करें इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, so your answer is 2. सो हमने ये क्वेश्चंस करे जिसमें हमारे लाइक डिनोमिनेटर्स यानी सेम डिनोमिनेटर्स थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब हम क्वेश्चन करते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर्स के। ये लाइक थे, सेम डिनोमिनेटर्स। ओके, अनलाइक डिनोमिनेटर्स या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको एलसीएम मेथड को समझना पड़ेगा। जब अनलाइक डिनोमिनेटर्स होते हैं यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 by 3 प्लस 4 by 6। अब इधर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, देखिए 3 है और 6 है यानी सेम नहीं है। सो हम करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। फर्स्ट स्टेप हम जो करते हैं वो होता है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं।
ओके, सो हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, 3 and 6 का एलसीएम, 3 1s are 3 2s are 6, then 2 1 and 1. So आया LCM 3 multiplied by 2 that is 6. 6 is the LCM. Okay. देखिए अब जब हमारा 6 LCM आ गया तो हमने कॉमन फैक्टर जो 3 और 6 था यानी 6 LCM को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में. ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इस डिनोमिनेटर को जो ऊपर है उस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. यहाँ डिवीजन होगा इसका भी और इसका भी. ओके, सो सेकंड स्टेप इज डिवाइड. ओके, 6 is divided by 3, your answer will be 2. और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. थर्ड स्टेप होती है मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमरेटर. ओके, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर्स को, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में. सो 6 is divided by 3, 2 आया, उस 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया. फिर ये 6 डिवाइड बाय 6, 1 आया, हमने इधर उसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो लुक हियर, 2 is multiplied by 2 plus 4 is multiplied by 1. Okay, 2 times 2 is 4, 4 times 1 is 4 and न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था 6. 4 plus 4 is 8, 8 डिवाइड बाय 6. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 2 times 4, 2 times 3. So your answer is 4 by 3. और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है उसको अपन ने ऊपर किया, जैसे प्लस माइनस जो भी था. तो 4 स्टेप्स में अनलाइक डिनोमिनेटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, फिर एक कॉमन फैक्टर चूज कर लिया. एलसीएम लेने के बाद उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और उसके बाद जैसे प्लस का ऑपरेशन था तो प्लस किया, जो भी ऑपरेशन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वो करेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, माइनस का क्वेश्चन देखते हैं. 4 upon 3 minus 7 upon 9. So we have different denominators. फर्स्ट स्टेप क्या है? एलसीएम. फर्स्ट स्टेप करा, एलसीएम लिया. 3 and 9 का एलसीएम लिया अपन ने. 3 we have take the LCM of 3 and 9. Okay, so 3 multiply by 3, मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन फैक्टर आएगा 9. 9 इज आवर कॉमन फैक्टर. सो हमारा एक कॉमन डिनोमिनेटर 9 आ गया. इसको हम इससे डिवाइड करेंगे. 3 इज डिवाइड बाय 9. जब हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, उसको हमने ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे. 9 इज डिवाइड बाय 9 दैट इज 1, और उस 1 को हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले आएंगे. ओके, फिर हम सॉल्व करेंगे. 4 3s are 12 माइनस 7 1s are 7, 9. ओके, 12 माइनस 7. अब ऑपरेट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, 12 माइनस 7 इज 5, तो 5 by 9 इज द आंसर. ओके, सो 4 स्टेप्स अपन ने इसमें अप्लाई करिए. ओके, नाउ मूव टू द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन. टू बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 7 ले लें. सो तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, लेकिन इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं है. ओके, नो एलसीएम इज रिक्वायर्ड. ये तो मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको बताया था, सिंपल होता है. जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. सो 2 8s are 16,
एंड 4 7s आर 28. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ हम कैंसिल भी कर सकते थे डायरेक्टली, यही सॉल्व हो जाता वो, 2 2s are 4 एंड 4/7 हो जाता. हो गया आंसर. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिवाइड. ओके, डिवाइड में भी अगर 4/8/7, दिस इज योर क्वेश्चन, इसमें भी सेम रूल यूज होगा, इसमें भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस के लिए यूज होता है. लुक हियर, वी हैव डिवाइड हियर. फर्स्ट स्टेप क्या थी? कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड देन चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. चेंज कर दिया और ये 2/4 एज इट इज. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. और सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, डेट इज 2 7s are 14, 4 8s are 32. ठीक है, और अगर नहीं करना तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 1s are 4 2s are, okay, 1 7s are 7, 2 8s are 16. This is your answer. So in this video we have discussed how to solve fraction, okay, like fractions and unlike fractions. Thanks for watching. Have a great day.